हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश का लेसन नंबर 16 जिसका नाम है द रेड राइस ग्रेनरी। लाल चावल अन्न भंडार। एवरी ईयर आवर कंट्री हैज टू फेस नेचुरल डिजास्टर इन सम फॉर्म। हमारे देश को हर साल किसी न किसी रूप में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। It may be an earthquake in Gujarat, floods in Odisha, or a drought in Karnataka. यह गुजरात में भूकंप, उड़ीसा में बाढ़ या कर्नाटक में सूखा हो सकता है। In a poor country, these calamities create havoc. एक गरीब देश में यह आपदाएं तबाही मचाती है। In the course of my work, I have found that after such calamities, many people like to donate money or materials to relief funds. अपने काम के दौरान मैंने पाया कि ऐसी आपदाओं के बाद बहुत से लोग राहत कोष में धन या सामग्री दान करना पसंद करते हैं। We assume that most donation come from rich people, but that is not true. हम मानते हैं कि ज्यादातर दान अमीर लोगों से आता है, लेकिन यह सच नहीं है। On the contrary, people from the middle class and lower middle class help more. इसके विपरीत मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग के लोग अधिक मदद करते हैं। Rarely do rich people participate wholeheartedly. शायद ही कभी अमीर लोग पूरे दिल से भाग लेते हैं। A few years back, I was invited to a reputed company in Bangalore to deliver a lecture on corporate social responsibility. कुछ साल पहले मुझे कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्याख्यान देने के लिए बेंगलोर की एक प्रतिष्ठित कंपनी में आमंत्रित किया गया था। Giving a speech is easy, but I was not sure how many people in the audience would really understand the speech and change themselves. भाषण देना आसान है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि दर्शकों में से कितने लोग वास्तव में भाषण को समझेंगे और खुद को बदल लेंगे। After my talk was over, I met many young girls and boys. मेरी बात को खत्म होने के बाद मैं कुछ युवा लड़कियों और लड़कों से मिला। It was an affluent company and the employees were well off and well dressed. यह एक समृद्ध कंपनी थी और कर्मचारी अच्छी तरह से तैयार थे। They were all very emotional after the lecture. व्याख्यान के बाद वे बहुत ही भावुक थे। Madam, we buy so many clothes every month. मैडम, हम हर महीने इतने कपड़े खरीदते हैं। Can we donate our all clothes to those people who are affected by the earthquake? क्या हम अपने पुराने कपड़े उन लोगों को दान कर सकते हैं जो भूकंप से प्रभावित हैं? Can you coordinate and send them? जो भूकंप से प्रभावित हैं, क्या आप समन्वय कर उन्हें भेज सकते हैं? Some of them offered the other things. उनमें से कुछ ने अन्य चीजों की पेशकश की। We have grown up children. We would like to give their old toys and some vessels. हमारे बड़े हो चुके बच्चे हैं, हम उनके पुराने खिलौनों और कुछ बर्तन देना चाहेंगे। I was pleased at the reaction. प्रतिक्रिया में बहुत प्रसन्न था। It reminded me of the incident in Ramayana where during the construction of the bridge between India and Lanka, every squirrel helped Shri Ram by bringing a handful of sand. इसने मुझे रामायण की घटना की याद दिला दी, जहां भारत और लंका के बीच पुल के निर्माण के दौरान हर गिलहरी ने मुट्ठी भर रेत लाकर श्री राम की मदद की थी। Please send your bags to my office. कृपया अपना बैग मेरे कार्यालय में भेजिए। I will see that they reach the right persons. मैं देखूंगा कि वे सही व्यक्ति तक पहुंचे।
Within a week, my office was flooded with hundreds of bags. एक हफ्ते के भीतर मेरे कार्यालय सैकड़ों बैग से भर गया. I was proud that my lecture had proven so effective. मुझे गर्व था कि मेरा व्याख्यान इतना प्रभावी साबित हुआ था. One Sunday, along with my assistants, I opened the bags. एक रविवार को मैंने अपने सहयोगी के साथ बैग खोले. What we saw left us amazed and shocked. हमने जो देखा वह चकित और स्तब्ध कर गया. The bags were brimming over with all kinds of junk piles of. बैग हर तरह के कबाड़ से भरे हुए थे. High-heeled slippers, some of them without the prayer, torn undergarments, unwashed shirt, transparent cheap series toys which had neither shape nor color, unusable bed sheets, aluminium vessels, broken cassettes were soon heaped in front of us like a mountain. ऊंची एड़ी की चप्पलें, उनमें से कुछ बिना जोड़ी के, फटे हुए अंडरगारमेंट्स, बिना धुली शर्ट, पारदर्शी सस्ती साड़ियाँ, खिलौने जिनका न तो आकार था और न ही रंग, अनुपयोगी चादरें, एल्यूमिनियम के बर्तन, टूटे हुए कैसेट, जल्द ही हमारे सामने पहाड़ की तरह ढेर हो गया. There were only a few good shirts, saris and usable materials. कुछ ही अच्छी कमीजें, साड़ियाँ और प्रयोग करने योग्य सामग्री थी. It was apparent that instead of sending the material to a garbage or the kabariwala, these people had transferred them to my office in the name of donation. यह स्पष्ट था कि इन लोगों ने सामग्री को कूड़ेदान या कबाड़ी वाले में भेजने के बजाय दान के नाम पर मेरे कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया था. The men and women I had met that day were bright, well-traveled, well-off people. उस दिन मैं जिन पुरुषों और महिलाओं से मिला वे उज्जवल, अच्छी तरह से यात्रा करने वाले संपन्न लोग थे. If educated people like them behaved like this, what would uneducated people do? अगर उनके जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसा व्यवहार करें तो अशिक्षित लोग क्या करेंगे? But then I was reminded of an incident from my childhood. लेकिन तभी मुझे बचपन की एक घटना याद आ गई. I was born and brought up in a village in Karnataka's Haveri district called Shigaon. मेरा जन्म और पालन पोषण कर्नाटक के हावेरी जिले के गांव में हुआ जिसे शिगांव कहा जाता है. My grandfather was a retired school teacher and my grandmother Krishnaka never went to my school. मेरे दादाजी एक सेवानिवृत्त स्कूली शिक्षक थे और मेरी दादी कृतिका कभी स्कूल नहीं गई. Both of them had hardly traveled and had never stepped out of Karnataka. उन दोनों ने मुश्किल से यात्रा की थी और कभी कर्नाटक से बाहर कदम नहीं रखा था. Yet they were hardworking people who did their work wholeheartedly without expecting anything from anybody in their life. जिन्होंने अपने जीवन में किसी से कुछ भी उम्मीद के बिना पूरे दिल से अपना काम किया. Their photographs never appeared in any paper, nor did they go up on a stage to receive a prize for the work they did. उनकी तस्वीरें कभी किसी अखबार में नहीं छपी, न ही वे अपने काम के लिए पुरस्कार लेने के लिए किसी मंच पर गए. They lived like flowers with fragrance in the forest, enchanting everyone around them, but hardly noticed by the outside world. वे जंगल की सुगंध के साथ फूलों की तरह रहते थे, अपने आसपास के सभी लोगों को मंत्रमुग्ध करते थे, लेकिन बाहरी दुनिया ने शायद ही उन्हें देखा हो.
In the village, we had paddy fields and we used to store the paddy in granaries. गांव में हमारे पास धान के खेत थे और हम धान को अन्न भंडार में रखते थे. There were two granaries. दो अन्न भंडार थे. One was in the front other uh, and the other at the back of our house. एक हमारे घर के सामने था और दूसरा हमारे घर के पीछे. The better quality rice, which was white, was always stored in the front granary, and inferior quality, which was little thick and red, was stored in the granary at the back. उत्तम किस्म का चावल जो सफेद होता था हमेशा आगे के अन्न भंडार में रखा जाता था और घटिया किस्म का जो थोड़ा मोटा और लाल होता था पीछे के अन्न भंडार में ही रखा जाता था. In those days there was no communal divide in the village. उन दिनों गांव में कोई सांप्रदायिक विभाजन नहीं था. People from different communities lived together in peace. विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ शांति से रहते थे. Many would come to our house to ask for alms. कई लोग हमारे घर भिक्षा मांगने आते थे. There were Muslim fakirs, Hindu dasals, who roamed the countryside singing devotional songs. Yalama Jagdish, who appeared holding the image of goddess Yalama over their heads, poor students and invalid people. मुस्लिम फकीर हिंदू दसला थे जो भक्ति गीत गाते हुए ग्रामीण इलाकों में घूमते थे. ये लम्मा जोगाथी और जो अपने सिर पर देवी यदमा की छवि पकड़े हुए दिखाई देते थे. गरीब छात्र और विकलांग लोग. We never had too much cash in the house, and the only help my grandfather could give these people was in the form of rice. हमारे पास घर में कुछ भी अधिक नकदी नहीं थी और मेरे दादाजी इन लोगों को केवल चावल के रूप में ही मदद कर सकते थे. People who receive help do not talk too much. मदद पाने वाले लोग ज्यादा बात नहीं करते. They would receive the rice, smile and raise their right hand to bless us. वे चावल प्राप्त करते, मुस्कुराते और हमें आशीर्वाद देने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाते. Irrespective of their religion, the blessing was always "May God bless you." उनके धर्म के बावजूद आशीर्वाद हमेशा भगवान आपका भला करे. My grandfather always looked happy after giving them alms. मेरे दादाजी उन्हें भिक्षा देकर हमेशा खुश दिखते थे. I was little girl then and not too tall. मैं तब छोटी लड़की थी और बहुत लंबी भी नहीं थी. Since the entrance to the front granary was low, it was difficult for grown-ups to enter. जो कि सामने के अन्न भंडार का प्रवेश द्वार कम था इसलिए बड़ों के प्रवेश करना मुश्किल था. So I would be given a small bucket and sent inside. तो मुझे एक छोटी बाल्टी दी जाती और अंदर भेज दिया जाता. There I used to fill up the bucket with rice and give it to them. वहाँ मैं बाल्टी में चावल भरकर उन्हें देती थी. They would tell me how many measures they wanted. वे मुझे बताएंगे कि वे कितने उपाय चाहते थे. In the evening, my grandmother used to cook for everybody. शाम को मेरी दादी सबके लिए खाना बनाती थी. That time she would send me to the granary at the back of the house where the red rice was stored.
उस समय वह मुझे उस घर के पीछे के अन्न भंडार में भेजती थी जहाँ लाल चावल रखे जाते थे। I would again fill up the bucket with as much rice as she wanted and get in for her to cook our dinner. मैं फिर से बाल्टी में उतने चावल भर देती जितना वह चाहती थी और हम उसे हमारे रात का खाना बनाने के लिए देती थी। This went on for many years. यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। When I was a little older, I asked my grandparents a question that had been bothering me for long. जब मैं थोड़ी बड़ी हुई मैंने अपने दादा दादी से एक सवाल पूछा जो मुझे लंबे समय से परेशान कर रहा था। Why should we eat the red rice always at the night when it is not so good and give those poor people the better quality rice? हमें हमेशा रात में लाल चावल क्यों खाना चाहिए जब ये इतना अच्छा नहीं है और उन गरीब लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाले चावल दे। My grandmother Kritika smiled and told me something I will never forget in my life. मेरी दादिका कृष्णिका मुस्कुराई और मुझे एक ऐसा बताया जिसे मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकती। Child, whenever you want to give something to somebody, give the best in you, never the second best. बच्चे, जब भी आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो सर्वश्रेष्ठ दे, दूसरा सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं। That is what I have learned from life. यही मैंने जीवन से सीखा है। God is not there in the temple, mosque or church. भगवान मंदिर, मस्जिद या चर्च में नहीं है। He is with the people. वह लोगों के साथ है। If you serve them with whatever you have served God. जो कुछ तुम्हारे पास है, यदि तुम उसकी सेवा करते हो, तो तुमने परमेश्वर की सेवा की है। My grandfather answered my question in a different way. मेरे दादाजी ने मेरे प्रश्न का उत्तर अलग तरीके से दिया। Our ancestors have taught us in the Vedas that one should. हमारे पूर्वजों ने हमें वेदों में सिखाया कि हमें चाहिए donate with kind word, दयालु शब्दों में दान करें। डोनेट विथ हैप्पीनेस, खुशी के साथ दान करें। डोनेट विथ सिंसिरिटी, ईमानदारी से दान करें। डोनेट ओनली टू द नीडी, जरूरतमंदों को ही दान करें। डोनेट विदाउट एक्सपेक्टेशन बिकॉज इट इज नॉट अ गिफ्ट, इट इज ए ड्यूटी। बिना अपेक्षा के दान करें क्योंकि यह कोई उपहार नहीं है, यह एक कर्तव्य है। डोनेट विद योर वाइफ्स कंसेंट, पत्नी की सहमति से दान करें। डोनेट टू अदर पीपल विदाउट मेकिंग योर डिपेंड्स हेल्पलेस, अपने आश्रितों को असहाय किए बिना अन्य लोगों को दान करें। डोनेट विदाउट केयरिंग फॉर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजियन, जाति, पंथ और धर्म की परवाह किए बिना दान करें। डोनेट सो दैट द रिसीवर प्रोस्पर्स, दान करें ताकि प्राप्तकर्ता समृद्ध हो। This lesson from my grandparents told to me when I was just a little girl has stayed with me ever since. मेरे दादा दादी का यह पाठ जो मुझे तब बताया गया था जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी, तब से मेरे साथ है। If at all I am helping anyone today, it is because of the teachings by those simple souls. I did not learn them in any school or college. अगर आज मैं किसी की मदद कर रही हूँ तो वह उन सरल आत्माओं की शिक्षाओं के कारण है। मैंने उन्हें किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखा। About the lesson, पाठ के बारे में। On the basis of her particular experiences, the writer expressed the views about donation. लेखक अपने व्यवहारिक अनुभवों के आधार पर दान के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है। In the given article,
We find how good quality rice is donated willingly and sincerely to the needy people, and the inferior one is used in home. दिए गए लेख में हम पाते हैं कि कैसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल को स्वेच्छा और ईमानदारी के से जरूरतमंद लोगों को दिया जाता है और घर में घटिया चावल का उपयोग किया जाता है। Donation should always be made after consulting the wife and fulfilling the family needs. दान हमेशा पत्नी से परामर्श करके और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बाद ही करना चाहिए। The things donated should always be useful and of a good quality. दान की गई वस्तु हमेशा उपयोगी और अच्छी गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। If we do not follow this, then the donation become meaningless. यदि हम इसका पालन नहीं करते हैं तो दान व्यर्थ जाता है।